یہ وہ کہانی ہے جسے سننا ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے جو طاقت، سیاست، ذہانت کو سمجھنا چاہتا ہے۔ اس ویڈیو سے آپ جانیں گے خاموشی سے اقتدار کیسے حاصل کیا جاتا ہے اور طاقت کا اصل چہرہ کیا ہوتا ہے۔ اس سٹوری کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، غور سے سنیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ویڈیو کو لائک، شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹ سے ہمیں ضرور بتائیے گا اس حیران کن خاتون نے آپ کو کیا سکھایا ہے۔ یہ کتنا اہم تصور کریں، شمالی کوریا میں ایک بہت بڑی ملٹری پریڈ ہو رہی ہے۔ ہزاروں فوجی ایک ساتھ قدم ملا رہے ہیں، ٹینکوں کی گڑگڑاہٹ ہے اور فضا نعروں سے گونج رہی ہے۔ اور اس سب کے بیچ سپریم لیڈر کے بالکل ساتھ ایک نوجوان خاتون کھڑی ہیں جن کے چہرے پر ایک ہلکی پراسرار سی مسکراہٹ ہے۔ یہ ہے کم یو جونگ، کم جونگ ان کی چھوٹی بہن۔ لیکن یہ صرف خاندانی تعارف نہیں ہے۔ اسی مسکراتے چہرے کو آج کچھ لوگ دنیا کی سب سے خطرناک عورت کہتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ کیسے ہوا؟ ہم آج اسی بند دروازے کے پیچھے جھانکنے کی کوشش کریں گے اور سمجھیں گے کہ اس خاتون نے خاموشی سے طاقت کا یہ ناقابل یقین جال کیسے بنا۔ اور آج ہماری کوشش یہی ہے کہ جو مواد ہمارے پاس ہے اس کی گہرائی میں جا کر دیکھیں۔ مطلب یہ کہ کم یو جونگ صرف ایک سپریم لیڈر کی بہن یا معاون نہیں ہے، ان کے کردار میں بہت سی پرتیں ہیں۔ ایک طرف وہ مسکراہٹ کے ساتھ سفارتکاری کرتی نظر آتی ہیں اور دوسری طرف ان کے حکم پر عمارتیں دھماکوں سے اڑا دی جاتی ہیں۔ تو ہم ان وجوہات کا جائزہ لیں گے جن کی بنا پر تجزیہ کار کہتے ہیں کہ انہیں ہلکے میں لینا دنیا کی سب سے بڑی غلطی ہو سکتی ہے۔ چلیں تو پھر بالکل شروع سے شروع کرتے۔ ان کی شخصیت کی طرح ان کی پیدائش بھی ایک معمہ ہے۔ امریکی ٹریجری کہتی ہے کہ وہ 1989 میں پیدا ہوئیں، جنوبی کوریا والے کہتے ہیں نہیں 1987 میں۔ یہ 2 سال کا فرق بھی ان کی زندگی کے اسرار کا حصہ ہے۔ والد کم جونگ ایل شمالی کوریا کے دوسرے ڈکٹیٹر، ان کے 2 بھائی ہیں۔ بڑے بھائی کم جونگ چھو جنہیں سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ گٹار بجانے اور موسیقی میں مگن رہتے ہیں، اور دوسرے موجودہ سپریم لیڈر کم جونگ اون۔ کم یو جونگ ان دونوں بھائیوں کی اکلوتی بہن ہے۔ بالکل، اور ان کا بچپن عام بچوں جیسا نہیں تھا۔ پیونگ یونگ میں ایک بہت بڑے پرتعیش کمپاؤنڈ میں گزرا، لیکن وہ دنیا سے مکمل طور پر کٹی ہوئی تھیں۔ انہیں باہری دنیا سے بچا کر ایک بلبلے میں رکھا گیا تھا۔ شاید یہ شروع سے ہی ان کی تربیت کا حصہ تھا کہ دنیا کو دیکھنا ہے پر دنیا کی نظروں میں نہیں آنا۔ لیکن پھر کہانی میں ایک بہت ہی دلچسپ موڑ آتا ہے۔ 90 کی دہائی میں ان کے والد انہیں اور ان کے بھائی کو پڑھنے کے لیے یورپ بھیج دیتے ہیں، وہ بھی سوئٹزرلینڈ۔ مجھے یہ بات ناقابل یقین لگتی ہے، ایک ڈکٹیٹر کے بچے سوئٹزرلینڈ کے ایک عام سے اسکول میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ کام کرتا کیسے ہے؟ یہ واقعی حیران کن ہے۔ 1996 میں کم یو جو کو برن کے ایک اسکول میں داخل کرایا گیا اور کچھ عرصے بعد کم جونگ ان بھی وہیں آ گئے۔ دونوں نے فرضی نام رکھے ہوئے تھے۔ کم جونگ ان کا نام تھا پاک ان اور کم یو جونگ کا نام تھا پاک می یانگ۔ وہ ایک عام سے اپارٹمنٹ میں رہتے تھے، لیکن یہ سب ایک دکھاوا تھا۔ دکھاوا؟ مطلب اس اپارٹمنٹ کی 24 گھنٹے نگرانی ہوتی تھی۔ شمالی کوریا کے اہلکار وہاں موجود ہوتے تھے اور انڈر کور باڈی گارڈز کی ایک پوری ٹیم ان کے ساتھ ہوتی تھی۔ اچھا، وہ بظاہر تو عام طالب علم تھے، لیکن پس پردہ ریاست کی پوری مشینری ان کی حفاظت پر لگی ہوئی تھی۔ تو یہ صرف یورپی تعلیم حاصل کرنا نہیں تھا بلکہ کچھ اور تھا۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ دیکھیں، اس کا مقصد بہت گہرا تھا۔ آپ سوچیں، 2 نوجوان بہن بھائی ایک اجنبی ملک میں جہاں ان کا ایک دوسرے کے علاوہ کوئی نہیں ہے، یہیں پر ان دونوں کے درمیان وہ اعتماد اور بھروسے کا رشتہ بنا جو آج شمالی کوریا کی حکومت کا ناقابل تسخیر مرکز ہے۔ صحیح۔ ان کے والد نے نادانستہ طور پر دنیا کے سب سے طاقتور بہن بھائی کے اتحاد کی بنیاد رکھ دی تھی۔ یہ صرف ایک رشتہ نہیں تھا، یہ ایک ایسا عالمی نظریہ تھا جو ان کے اپنے لوگوں کی حقیقت سے بالکل الگ تھا۔ تو سوئٹزرلینڈ سے واپسی کے بعد پارٹی کے ڈھانچے میں ان کا راستہ کیا تھا؟ کیا یہ ایک سست آمسی چڑھائی تھی یا انہیں شروع سے ہی تیزی سے آگے بڑھایا گیا تھا؟ انہیں بالکل فاسٹ ٹریک کیا گیا تھا۔ 2007 میں انہوں نے کامل سنگ یونیورسٹی سے کمپیوٹر سائنس میں ڈگری لی اور اسی سال ورکرز پارٹی میں ایک جونیئر عہدہ سنبھال لیا۔ لیکن اصل چھلانگ انہوں نے 2012 میں لگائی۔
सिर्फ 23 साल की उम्र में उन्हें नेशनल डिफेंस कमीशन में अपने भाई का टूर मैनेजर बना दिया गया। टूर मैनेजर? ये सुनने में तो कोई बहुत बड़ा ओहदा नहीं लगता। नाम पर मत जाएं। शमाली कोरिया में इस ओहदे का मतलब था कि सुप्रीम लीडर कब, कहां और कैसे जाएंगे, उनका रास्ता क्या होगा, उनकी सिक्योरिटी कैसी होगी। ओह, ये सब फैसले एक 23 साला लड़की के हाथ में थे। ये ओहदा सिर्फ उस शख्स को मिल सकता है जिस पर सुप्रीम लीडर आंखें बंद करके भरोसा करता हो। ये उनके इख्तिदार के मरकज में दाखिल होने का पहला बड़ा कदम था। और उसके बाद वो और भी अहम ओहदे पर पहुंची। 2014 में उन्हें प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट का वाइस डायरेक्टर बना दिया गया। ये कितना अहम था? ये उनकी ताकत का असल लॉन्च पैड था। देखें, शुमाली कोरिया का प्रोपेगेंडा एंड एजिटेशन डिपार्टमेंट सिर्फ एक मीडिया विंग नहीं है। ये वो मशीनरी है जो लीडर को भगवान बनाती है और अवाम की सोच को कंट्रोल करती है। बिल्कुल। किम योंग जोंग ने 1 साल के अंदर इस पूरे इदारे पर अपना कंट्रोल कायम कर लिया। उन्होंने अपने भाई के इमेज को अपने दादा किम इल संग की तरह एक मेहरबान लेकिन मजबूत लीडर के तौर पर पेश करने की मुहिम चलाई। इस वक्त तक वो सिर्फ एक मुशीर नहीं थी, वो हुकूमत का दिमाग बन चुकी थी। और इसी प्रोपेगेंडा की महारत का भरपूर मुजाहिरा हमें 2018 में देखने को मिला, है ना? जब वो पर्दे के पीछे से निकलकर विंटर ओलंपिक्स के दौरान आलमी स्टेज पर आ गई। बिल्कुल, वो एक तारीखी लम्हा था। 1953 की जंग के बाद किम खानदान का कोई फर्द पहली बार जनूबी कोरिया की सरजमीन पर कदम रख रहा था। वाकई। और कम यू जोंग ने इस मौके को कमाल महारत से इस्तेमाल किया। उनके चेहरे पर हर वक्त एक दिलकश मुस्कुराहट थी। उन्होंने जनूबी कोरिया के सदर के साथ डिनर किया, अपने भाई का खत पेश किया, मीडिया में उनकी तस्वीरें छप गईं और दुनिया भर में एक पैगाम गया कि शायद शुमाली कोरिया बदल रहा है। लेकिन क्या वाकई कोई इस मुस्कुराहट की सिफारतकारी पर यकीन कर रहा था, या ये सबको मालूम था कि ये एक शानदार अदाकारी है? माहिरीन तो इसे शुरू से ही एक प्रोपेगेंडा चाल कह रहे थे। इसका मकसद पाबंदियों से परेशान शुमाली कोरिया के लिए दुनिया में थोड़ी नरमी पैदा करना था और अमेरिका और जनूबी कोरिया के दरमियान गलतफहमियां पैदा करना था। अच्छा। कम यू जोंग इस शतरंज की बाजी को एक माहिर खिलाड़ी की तरह खेल रही थीं। वो जानती थीं कि कैमरे के सामने कैसे मुस्कुराना है और बंद दरवाजों के पीछे क्या बात करनी है। उसके बाद वो सदर ट्रंप और सदर मून जय इन के साथ होने वाली हर मीटिंग में अपने भाई के पीछे साई की तरह मौजूद रहीं। लेकिन फिर 2019 में अमेरिका के साथ मुज़ाकरात नाकाम हो गए और कहा जाता है कि उन्हें कुछ अरसे के लिए साइडलाइन कर दिया गया। लेकिन ये तो तूफान से पहले की खामोशी साबित हुई। अप्रैल 2020 में जो हुआ वो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। किम जोंग उन अचानक गायब हो गए और दुनिया भर में अफवाहें फैल गईं कि वो शदीद बीमार हैं या शायद मर चुके हैं। हर तरफ एक पुरस्रार खामोशी थी और इसी खामोशी को किम यू चोंग की गुर्जेदार आवाज ने तोड़ा। पहली बार उनके नाम से एक जाती बयान जारी हुआ। और उस बयान में उन्होंने जनूबी कोरिया को क्या कहा? खौफ से कांपता हुआ भौंकने वाला कुत्ता। ये सिफारती जुबान तो बिल्कुल नहीं थी। ये सिफारतकारी थी ही नहीं, ये ताकत का खुल्लम खुला इजहार था। सही। ये दुनिया के लिए और शुमाली कोरिया के अंदर अपने दुश्मनों के लिए एक वाज़ेह पैगाम था कि अगर भाई मंजर पर नहीं है तो बहन तख्त संभालने के लिए पूरी तरह तैयार और अहल है। इस एक बयान ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक मुशीर नहीं बल्कि इस हुकूमत की असल आयरन लेडी है। और इसका नतीजा क्या निकला? किम जोंग उन कुछ हफ्तों बाद वापस मंजर आम पर आ गए और किम यू जोंग को पहले से भी ज्यादा ताकत के साथ पॉलिटिकल ब्यूरो में बहाल कर दिया गया। पॉलिटिकल ब्यूरो से क्या मुराद है? ये कितना अहम है? पॉलिटिकल ब्यूरो या पोलिट ब्यूरो शुमाली कोरिया की हुकूमत की मरकजी फैसला साज काउंसिल है। ये वो जगह है जहां मुल्क के तमाम बड़े फैसले होते हैं। इसमें वापसी का मतलब था कि उनकी ताकत पर सरकारी मोहर लग चुकी थी। अब वो सिर्फ पर्दे के पीछे नहीं बल्कि सामने बैठकर फैसले कर रही थीं। अब उनके किरदार के एक ज्यादा तारीख पहलू पर बात करते हैं। ये जो कहानियां हैं अपने फूफा को मरवाने की या सोतेले भाई के कत्ल की, क्या ये सिर्फ अफवाहें हैं या इनके पीछे कोई ठोस हकीकत है? क्या उनकी बेरहमी का कोई वाज़ेह पैटर्न नजर आता है? देखे, शुमाली कोरिया जैसी बंद रियासत में कुछ भी 100% यकीन से कहना मुश्किल है, लेकिन जो शवाहिद और तज्जिए हैं वो एक वाज़ेह पैटर्न की तरफ इशारा करते हैं। 2013 में जब उनके फूफा जंग सोंग थाइक को
गद्दार करार देकर सरेआम सजाए मौत दी गई तो बहुत से जराए ने कहा कि इस फैसले के पीछे किम यू जोंग का हाथ था, ताकि वो अपने भाई के लिए तमाम मुमकिन खतरात को खत्म कर दें। और उनका जुर्म क्या था? यही कि उन्होंने सुप्रीम लीडर के लिए जोश से ताली नहीं बजाई थी। बज़ाहिर तो यही बताया गया, लेकिन असल वजह इख्तदार की जंग थी। इसी तरह 2017 में जब उनके सौतेले भाई किम जोंग नाम को मलेशिया के एयरपोर्ट पर जहरीले केमिकल से कत्ल किया गया, तो उसके पीछे भी शुमाली कोरिया की खुफिया एजेंसियों का हाथ माना जाता है। ये तमाम इक़दामात इक़्तिदार को मजबूत करने और मुखालिफिन को एक खौफनाक पैगाम देने के लिए थे। किम यू जोंग को इस हिकमत अमली का मास्टरमाइंड समझा जाता है। और ये बेरहमी सिर्फ अंदरूनी दुश्मनों तक ही महदूद नहीं है। जून 2020 में उनके हुक्म पर दोनों कोरियाओं के दरमियान दोस्ती की अलामत लेजून ऑफिस की इमारत को धमाके से उड़ा दिया गया। ये तो एक बहुत बड़ा कदम था। ये एक एलामती और हकीकी दोनों तरह से बहुत बड़ा कदम था। ये इमारत जनूबी कोरिया के पैसों से बनी थी और दोनों मुल्कों के दरमियान राब्ते का आखिरी जरिया थी। इसे तबाह करके किम यू जोंग ने यह पैगाम दिया कि वो मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगेंगी, और अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वो किसी भी हद तक जा सकती हैं। बिल्कुल। उनके अल्फाज भी उनके अमल की तरह सख्त होते हैं। वो मुल्क छोड़ने वालों को गलीज कीड़े कहती हैं और अमेरिकी सदर जो बाइडेन को बूढ़ा शख्स जिसका कोई मुस्तकबिल नहीं कहकर पुकारती हैं। तो आज उनकी हैसियत क्या है? क्या वो बाज़ाब्ता तौर पर नंबर 2 हैं? डी फैक्टो यानी अम्मी तौर पर वो नंबर 2 ही हैं। वो मुल्क की सबसे आला फैसला साज स्टेट अफेयर्स कमीशन की वाहिद खातून रुकन हैं। वो अपने भाई की माउथ पीस बन चुकी हैं। बहुत से अहम बयानात अब किम जोंग उन की बजाय उनके नाम से जारी होते हैं। कुछ माहिरीन तो उन्हें शुमाली कोरिया की फीमेल को डिक्टेटर यानी शरीक डिक्टेटर भी कहते हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही पैदा होता है कि आगे क्या होगा? अगर कल को किम जोंग उन मंजर से हट जाते हैं तो क्या अगली हुक्मरान किम यो जोंग होंगी? ये $1 मिलियन सवाल है। शुमाली कोरिया से फरार होने वाले एक आला तरीन सिफारतकार थाई योंग हो का मानना है कि अगर किम जोंग उनको कुछ हो जाता है तो क़यादत किम यो जोंग को ही मिलेगी। अच्छा। इसकी सादा सी वजह है पैक्टो ब्लड लाइन यानी किम खानदान का खून। अभी तक किम जोंग उनका कोई बेटा इतना बड़ा नहीं कि हुकूमत संभाल सके। इस खला को पुर करने के लिए किम यो जोंग सबसे मंतकी और शायद वाहिद इंतखाब हैं। अगर हम तारीफ में देखें तो क्या ऐसी ताकतवर और बेरहम खवातीन हुक्मरानों की मिसालें मिलती हैं? क्या उनसे कोई मुवाजना किया जा सकता है? तारीख ऐसी मिसालों से भरी पड़ी है। चीन की मलका वो जीतियान ने 7वीं सदी में अपने रास्ते में आने वाले हर शख्स को, यहाँ तक कि अपने ख़ानदान वालों को भी ख़त्म कर दिया। यूरोप की मलका मेरी ट्यूडर ने हज़ारों लोगों को सिर्फ मजहबी इख्तलाफ पर जिंदा जला दिया। तो इख्तदार के लिए बेरहमी कोई नई बात नहीं है। लेकिन क्या ये मुवाजना आज के दौर में दुरुस्त है? यहीं पर आकर बात बहुत खौफनाक हो जाती है। उन पुरानी मलकाओं के पास बेपनाह ताकत थी, लेकिन उनके पास ना तो न्यूक्लियर मिसाइलों का बटन था, सही, और ना ही एक ऐसी बंद सोसाइटी जहां हर शहरी की सोच पर रियासत का कंट्रोल हो। आज किम जू जोंग के पास ये दोनों चीजें मौजूद हैं। यही वो हकीकत है जो उन्हें तारीख की किसी भी दूसरी खातून हुक्मरान से कहीं ज्यादा खतरनाक बनाती है। तो एक खामोश पर्दे के पीछे काम करने वाली मुआवन से लेकर दुनिया की सबसे ताकतवर खवातीन में से एक बनने तक उनका सफर वाकई हैरानकुन है, और शायद उन्हें एक औरत होने की वजह से कमजोर समझना किसी की भी सबसे बड़ी भूल होगी। बिल्कुल, और यही बात हमें अपने आखिरी सवाल की तरफ ले जाती है जो सामीन के सोचने के लिए है। असल सवाल ये नहीं है कि किम यू जोंग कितनी खतरनाक हैं। असल सवाल ये है कि अगर कल को किम जोंग उन मंजर से हट जाते हैं तो क्या दुनिया पहली बार एटमी हथियारों से लेस एक खातून डिक्टेटर का सामना करने के लिए तैयार है? एक ऐसी औरत जिसके बारे में हम जानते हैं कि इसके एक इशारे पर इमारतें राख और इंसान कत्ल हो जाते हैं। क्या वो अपने भाई से भी ज़्यादा सख्त और बेरहम साबित होंगी, या ये सब सिर्फ एक खौफनाक कहानी का आगाज़ है?